Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to start section B of Biology ICSE KISA Preparatory Examination for the year 2025, section B. Question number 3. State Mendel's Law of Dominance. ये आपको पता ही है, हर बार पेपर में आना ही आना है. तो तीनों लॉ में से एक आना है. लॉ ऑफ डोमिनेंस है. Out of a pair of contrasting character present together, only one is able to express itself, which is dominant, while the other remains suppressed, which is recessive. Name the phenomenon that explains the increase in dark-colored peppered moths during the Industrial Revolution and give the scientific name of the peppered moth that was involved in this phenomena. So this phenomena is industrial melanism, and the scientific name for that peppered moth is Biston betuliria. ये आपको याद करना, ये पक्का क्वेश्चन आने वालों में से है. What are neurotransmitters? Give an example. Neurotransmitters are chemicals that sets a new impulse in the dendrites of next neuron. For example, acetylcholine, epinephrine भी हम इसका नाम ले सकते हैं. Next is, during a routine inspection at a nuclear power plant, a technician discovered that a radioactive isotope has leaked into a nearby river. This is found to accumulate in the endocrine gland, which is responsible for regulating metabolic activities in the human body. Mention the radioactive isotope and that endocrine gland. तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप कौन सा है जो गया हो सकता है? इट इज आयोडीन 131. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसके साथ जुड़ी हैं? थायराइड के साथ. तो थायराइड में आयोडीन का रोल आपको पता है, तो दिस इज आयोडीन 131 है. और ग्लैंड कौन सी होगी? एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड ही है. थायराइड ग्लैंड ही, जब भी मेटाबॉलिज्म की बात आती है थायराइड ग्लैंड ही लेते हैं. A group of students is conducting an experiment to investigate how different factors affect the rate of photosynthesis in plant. तो ये सेटअप दिया गया आपको. Identify the factor being investigated. I have already told you in such type of question, if your first part is wrong, then your whole marks will gone. तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, करेक्टली लिखना है, नहीं तो लिखना ही नहीं है. तो आइडेंटिफाई द फैक्टर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड हियर, क्योंकि आपको बॉटल दिख रही है अंदर KOH, और KOH आपको पता है कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है. तो इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. दिस इज द फैक्टर बीइंग investigated. In B, what is the reason for using potassium hydroxide in the experiment? I just told you that potassium hydroxide absorbs carbon dioxide. In C part, what did the students observe when the leaf A was tested for starch? When leaf A आपका जो लेबल दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो बाहर का पार्ट है, मतलब कि प्लांट का वो लीफ है जो बाहर है, यानी जिस पर KOH का कोई असर नहीं है. इट मींस उसको उसकी CO2 नहीं छीन रही है, यानी पूरी फोटोसिंथेसिस की कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो इट मींस जब आयोडीन टेस्ट हम करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे, तो इट विल टर्न टू ब्लू ब्लैक. तो क्योंकि लीफ A इज आउटसाइड द बॉटल. इफ लीफ ए का हम अंदर वाला पार्ट लेंगे जो बॉटल के अंदर है, देन ऑन आयोडीन टेस्ट पे क्या हो जाएगा? इट विल टर्न टू ब्राउन. ये लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है. मैनी स्टूडेंट वर अनेबल टू गिव कि ब्राउन क्यों होगा, सबने लिख दिया ब्लू ब्लैक ही होगा, पूछा तो ब्लू ब्लैक ही होगा. आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सही आंसर यही बन रहा है कि जो एक्सपोज्ड पार्ट है जो बॉटल के बाहर है, that will turn to bluish black color, and जो inside वाला part है that will turn to brown color only. Now coming to question number 4, why do unripe bananas ripen when stored with ripe oranges? Unripe bananas ripen when stored with ripe oranges due to ethylene released from ripened orange, जिससे पहली बार ये गैस ऑब्जर्व हुई थी, हमें मिली थी, डिस्कवर हुई थी. Differentiate between population density and natality. दोनों की डेफिनेशन देनी है. Population density in the number of individuals per square kilometer, and natality is the number of live births per 1000. यहाँ पर 1000 जरूर याद रखना है, पर 1000 पीपल ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर. ज्यादातर स्टूडेंट पर 100 लिख के गलत कर देते हैं. जब भी नेटेलिटी या मॉर्टेलिटी का आएगा, तो जैसे नेटेलिटी में लाइव बर्थ पर 1000 पीपल ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर. Third is, what would be the possible color vision traits of the offsprings resulting from a marriage between a color blind father and a mother with normal vision? तो पनेट स्क्वायर बना के देखोगे आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पनेट स्क्वायर में प्रोगेनी बनाओगे तो आपके पास कलर ब्लाइंड फादर है, तो फादर के ऊपर हम कैरियर का सिंबल लगाएंगे. फादर का हम X और Y से दिखाते हैं, तो X और Y उसके ऊपर हम सर्कल लगा देंगे ताकि हमारे पास आ गया. और दूसरी तरफ हमारा मदर का नॉर्मल विजन है, तो XX लगा देंगे. तो पहला XX हमारे पास नॉर्मल आएगा, फिर दूसरा वाला XY मतलब बॉय, फिर थर्ड वाला हो जाएगा XX जिसपे X तो नॉर्मल ही है. तो अभी ये XX यानी कौन है? डॉटर. तो 2 कैरियर डॉटर्स आएंगी और 2 नॉर्मल सन आएंगे.
क्यों नॉर्मल सन है? क्योंकि उनके ऊपर अभी एक ही कैरियर है, इसलिए। अगर मदर भी कलर ब्लाइंड होती या कैरियर होती, फिर हमारे पास प्रोगेनी कुछ चेंज हो जाती। Now in fourth part, a team of anthropologists has discovered a set of fossil remains in a remote area. The team is trying to identify which early human ancestor these characteristics might belong to. Based on the characteristic, identify the human ancestors. Cranial cavity ranging between 450 to 600 centimeter cube. तो प्रोग्नेथिस फेस, लैक ऑफ चिन, ये सारे ये हमें पहचानना है एंसेस्टर कौन से हैं ये वाले। सो दिस इज ऑस्ट्रोलोपिथिकस। नेक्स्ट इज क्रिनल कैपेसिटी रेंजिंग बिटवीन 1450 टू 1600 सेंटीमीटर क्यूब। ऑर्थोग्नेथिस फेस एंड वेल डेवलप्ड चिन आ गई है, तो कौन हो गया ये? क्रो-मैग्नन मैन। तो ये आपको पता है, टेबल आपने लर्न करना है, टेबल में से ये वाले आंसर आपको मिल जाने हैं। अपनी क्लैरिटी के लिए आप पूरा चैप्टर गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटल अपरेटस। तो स्टोमेटा का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसमें आपके पास आउटर वॉल आ जाएगी, इनर वॉल आ जाएगी, गार्ड सेल, इन स्टोमा का स्पेस आप थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे ताकि दिखाई दे जाए, साइड में न्यूक्लियस शो करने हैं और एपिडर्मल सेल्स शो करने हैं। तो बस आपका इतना सही है, और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन फाइनल बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। Now coming to question number 5. Why is blood group O referred to as the universal donor? Blood group O is referred to as universal donor because it lacks, नहीं होता, A and B antigen on the surface of its red blood cells. This absence prevents agglutination or clumping of cells when blood is transfused to individuals with other blood types. इसीलिए ये वाला ब्लड किसी को भी डोनेट किया जा सकता है। मेन वर्ड है, बस वो प्रिवेंट कर रहा है क्लम्पिंग ऑफ सेल्स, इतना लिख देंगे तो मीन्स वो किसी को भी ट्रांसफ्यूज अगर हम करेंगे इंडिविजुअल में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंड इज राइट टू फंक्शंस ऑफ सेंट्रोमियर। Centromere attaches chromosomes to spindle fiber during cell division, ensuring proper alignment and segregation of chromatids. Second is centromere holds the two sister chromatids together after DNA replication. Next part, what are the factors contributing to the population growth in India? बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बट पॉपुलेशन से हर बार इस तरह का क्वेश्चन कवर होना ही है। Contributing to population growth in India: illiteracy, traditional belief, mortality rate, economic reason, religious and social customs, या फिर desire for male child, या फिर lack of recreation. So many factors are given in your book. You have to write any two from these. Fourth is Sanjesh was walking in a forest when he suddenly encountered a wild animal. How did the activation of his sympathetic nervous system affect his pupils and blood vessels in this high stress situation? सोच के देखो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या फर्क पड़ा। आगे से जानवर आएगा तो हम कहेंगे हेलो हेलो, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या करना है? ओहो, आंखों पे ऐसे हो जाएगा कि ये क्या है, तो क्या बोलेंगे? डायलेशन ऑफ प्यूपिल, यानी कि प्यूपिल का साइज रेगुलर से बड़ा हो गया कि क्या एकदम मेरे सामने क्या आ गया, डर गए ना, क्योंकि स्ट्रेस सिचुएशन है इसलिए। और ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, चेहरा क्या हो जाएगा? कंस्ट्रिक्ट होने की वजह, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से आपका चेहरे का रंग उड़ जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट इज, आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों ही बहुत अच्छे से करने, रिलेटेड क्वेश्चंस पक्का आएंगे। रिया इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड हर फिजिक्स टेक्स्ट बुक। पढ़ी नहीं जा रही है, ये नहीं कि फिजिक्स अच्छी नहीं लगती है, पढ़ी नहीं जा रही है। व्हाट कंडीशन इज रिया लाइकली टू सफरिंग फ्रॉम? सो मतलब पास की चीज नहीं दिख रही है, तो क्या हो गया? लंबा नाम, यानी हाइप्रोपिया। What could be the possible cause for this condition? क्योंकि बायोलॉजी है तो कॉज जरूर पूछेंगे। शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक, फर्स्ट कॉज। सेकेंड इज लेंस इज टू फ्लैट। दोनों ही केसेस में आपको क्लैरिटी नहीं होगी पास की चीजों के लिए। हाउ कैन दिस कंडीशन बी करेक्टेड? बाय यूजिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ज्यादातर हम बड़े लोगों को लगता है क्योंकि इसका बड़ा नाम है, बड़े लोगों को लगता है, बट क्योंकि उन्होंने यहाँ कह दिया कि पास की बुक रीड नहीं हो रही है, तो पास की बुक मतलब हाइप्रोपिया, पास की नजर के लिए ही लगाया गया, दूर का नाम। Now next is question number 6. Why is blind spot considered as an area of no vision? Considered as an area of no vision because there are no light sensitive cells. कौन से होते हैं? rods and cones in this part of retina. तो कोई vision ही नहीं होगा, जहां ज्यादा होंगे वो हमारा best vision point हो जाएगा, fovea. What is the natural pacemaker of the human body? Where is it located? The natural pacemaker of human body is sinoatrial node, SAN.
डायग्राम में अच्छे से चेक करो। नेक्स्ट है वेयर इज इट लोकेटेड, लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम के अपर पार्ट में है, नियर द ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर वेना कावा, जहां से पोस्टीरियर वेना कावा और वो जुड़ रहे हैं वहीं पे। थर्ड पार्ट इज इन व्हाट वेज डज द एमनियन सपोर्ट द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो दो देने हैं हमने, आप कोई भी दो ले सकते हैं। एमनियन फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव सैक अराउंड द एम्ब्रो और फीटस, cushioning it from mechanical shocks and external pressure. Amniotic fluid allows the fetus to move freely with the amniotic sac, मतलब उसको थोड़ी बहुत मूवमेंट प्रोवाइड करता है कि वो अंदर इजीली मूव कर पाए, नहीं तो क्या वो 9 months का टाइम ऐसे ही हो जाएगा, हिलेगा ही नहीं। Maintains even pressure all around the embryo. प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ द फीटस टू द एमनियन, उसको स्टिक होने से भी बचाता है। अगर स्टिक हो जाता है तो कई बार आपने देखा होगा जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनकी पीठ पे या कहीं पे कुछ नीला नीला ऐसे पूरा बड़ा बड़ा सा पैचेस रह जाते हैं जहां पर ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग वेजिटेबल्स, जब हम अचार डालते हैं, हाउ डज सॉल्ट हेल्प प्रिजर्व द फूड एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज, कैसे नमक की वजह से वो खराब नहीं होता है। व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू द वेजिटेबल्स ड्यूरिंग पिकलिंग, salts create a hypertonic solution around the vegetables. This causes exosmosis where water moves out of vegetable, बाहर आ गया, पानी अंदर नहीं रहा। As a result, plasmolysis occur in plant cells, causing the cells to shrink, which helps preserve the vegetables and prevent spoilage by making the environment less favorable to harmful microbes. This is the appropriate answer. Last part of the same question, the image shows two individuals with extreme differences in height. This condition is caused due to a hormone secreted by an endocrine gland. Growth hormone है। Where is this gland located? कहाँ पर gland है? ये वाली उसकी location क्या है? This is pituitary gland and its location is at the base of the brain. दोनों चीजें लिखनी है, बेस ऑफ द ब्रेन एंड बीनीथ द हाइपोथैलेमस, बस इतनी लोकेशन सफिशिएंट है। डिफाइन ट्रॉपिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन्स आर हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अदर हार्मोन्स फ्रॉम वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड, जो बाकी सबको स्टिमुलेट करते हैं। A couple struggling with infertility was advised to check the hormones secreted by this gland that plays a key role in gametogenesis. Name the hormone. कौन सा है? This is FSH, means follicle stimulating hormone. Question number 7. Why do plants droop or wilt in the afternoon? Wilt in the afternoon as the rate of transpiration is more than the rate of absorption of water by roots. This causes loss of turgidity of the leaves, जिसकी वजह से वो flaccid या फिर wilt हो जाते हैं। What is the role of prostate gland and seminal vesicles in male reproductive system? Prostate gland pours an alkaline secretion which neutralizes the acidic environment of the vagina. Vagina के अंदर acidic medium को neutralize करता है क्योंकि ये खुद alkaline secretion है इसलिए। Seminal vesicles produce a fructose-rich fluid that nourishes sperm. आप सिर्फ nourishment of sperm भी लिख सकते हैं and act as a medium for transportation of sperm, जिसकी वजह से sperm motile बनता है, move कर पाता है, उसमें भी help करता है। इसके अलावा उसको nourishment भी देता है, इतना भी आप mention कर सकते हैं। During which stage of mitosis do the following events occur? Chromosomes condense and become visible inside the nucleus. तो ये किस फेज में हो रहा है कि क्रोमोसोम कंडेंस यानी डार्क हो जाते हैं और थोड़े ब्लैक कलर के दिखते हैं हमारे को डायग्राम में? दिस इज प्रोफेज। नेक्स्ट इज माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स एंड क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्फ अलोंग द सेल्स इक्वेटोरियल प्लेन। जब इक्वेटोरियल प्लेन में बीच में आ गए तो ये हो गई मेटाफेज। आईपी मैट से सीक्वेंस याद रख के करना है। What are the key functions of distal convoluted tubule in the process of formation of urine? तो डिस्टल यानी DCT के बारे में बोल रहा है। हेल्प्स इन, सबसे मेन काम ही जो अकेला वही है वो ट्यूबुलर सेक्रेशन है, क्योंकि ये ट्यूब कोई आर्टिफिशियल ट्यूब तो है नहीं है, तो ये ट्यूबुलर सेक्रेशन इसका मेन काम है। इट इज द प्रोसेस इन द किडनी वेयर सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स, पोटेशियम आयंस एटसेट्रा आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। और दूसरा काम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, is a process in the kidney where essential substances like water, glucose, amino acids and ions जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, ये सारे भी वो एब्जॉर्ब करता है यानी कि रीअब्जॉर्ब करता है। आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीनल फिल्ट्रेट
बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, उसको वापस बाहर नहीं जाने देगा बॉडी से, ब्लड स्ट्रीम में ही डाल देगा वापस से। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, जो हार्ट के पास लेकर आ रही है, जैसे वेना कावा लेकर आ रही है, लेकर जा नहीं रही है, ला रही है तो कौन हो गई, वेन। हमने वेन या आर्टरी में से आंसर देना, क्योंकि ब्लड वेसल तो यही दो है ना, तो वेन लेना। ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवर्ड द हार्ट, वो हो गया वेन, जिसमें हमें वाइडर ल्यूमेन दिखाना है, बड़ा सा ल्यूमेन दिखाना है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर थोड़ी सी ही लेबलिंग है। एक्सटर्नल लेयर दिखानी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसको लिखेंगे, फिर मिडल लेयर होगी जो स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, जिसको ट्यूनिका मीडिया लिखेंगे, और लास्ट जो एंडोथीलियम होगी जिसको ट्यूनिका इंटरना लिखेंगे। तो इंटरना, एक्सटर्नल और मीडिया ये लिखना है आपने ट्यूनिका के साथ, और ल्यूमन। इसका सिंपल सा 4 ही पार्ट्स की लेबलिंग होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, what is cytokinesis? Cytokinesis is the process during cell division where the cytoplasm of a parental cell is divided into 2 daughter cells. वैसे तो cytokinesis मतलब क्या हो गया कि क्या डिवाइड हो रहा है, जैसे कायरोकिनेसिस होता है ऐसे ही साइटोकिनेसिस है, तो सेल डिवीजन हो रही है जहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड, सी से याद रखो, सी से साइटोप्लाज्म, सी से ही साइटोकिनेसिस। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है पेरेंटल सेल का, और दोनों डॉटर न्यूक्लियस सेल्स में डिवाइड होके जा रहा है। Given below are the two statements which are incorrect. Rewrite the correct statement. First incorrect statement is depletion of ozone layer is caused by increased level of carbon monoxide in the atmosphere. तो correct statement क्या हो जाएगी, depletion of ozone layer is caused by increased level of कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग तो होती है, लेकिन यहाँ पर उसने ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहा, उसने कहा है कि इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है। तो किसकी वजह से होगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट मीन CFC। तो इंक्रीज लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट इज वेसोप्रेसिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, वेसोप्रेसिन की वजह से नहीं होता, दिस इज ऑक्सीटोसिन causes contraction of uterus during childbirth. What is the phenotypic ratio in F2 generation of a monohybrid cross and a dihybrid cross? तो phenotypic ratio in F2 generation monohybrid cross के लिए it is 3:1, mono है ना तो इसलिए 3:1, and phenotypic ratio in F2 generation dihybrid cross के लिए it is 9:3:3:1। तो टोटल हमने पूरा खोल के बताना है, उनको पूरा खोल के देना है। नेक्स्ट इज प्लांट एग्जिबिट्स द एबिलिटी टू ग्रो टुवर्ड्स लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, प्रोसेस दैट हेल्प देम ऑप्टिमाइज फोटोसिंथेसिस। दिस मूवमेंट इज नॉट रैंडम बट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट हार्मोन। तो कौन सा प्लांट हार्मोन है, डिफाइन द फिनोमेना डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पिक्चर। पहले तो ये बताओ कि वो बेंड हो रहा है तो कौन सा फिनोमेना होगा, दिस इज फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब सनलाइट, ट्रोपिज्म आपको पता ही है, तो फोटोट्रोपिज्म इज अ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द लाइट। रैंडम नहीं है कि उसकी मर्जी थी कि मैं सन की तरफ चला जाऊं, उसको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ा, हाउ डज द हार्मोन ऑक्सिन कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस, ऑक्सिन प्रमोट फोटोट्रोपिज्म बाय एक्यूमुलेटेड ऑन द शेडेड साइड ऑफ द प्लांट। जिस तरफ सन है, अगर सन इस तरफ है तो इस तरफ ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, ज्यादा होने की वजह से इधर से ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ होती है तो ग्रोथ ज्यादा होगी और इसलिए वो उधर बेंड हो जाएगा। तो हमने ये पूरा लिखना है, ऑक्सीजन प्रमोट फोटोट्रोपिज्म by accumulated on the shaded side of the plant causing those cells to elongate and making the plant bend towards the light। और लास्ट है ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये तो आप 8th क्लास से बनाते आ रहे हैं, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। 3 मार्कर क्वेश्चन है, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, डेंड्रॉन, नील्स, ग्रेन्यूल्स दिखाने हैं आपने, साइटोन, एक्सॉन, न्यूक्लियस दिखाया, इसके अंदर ट्यूबुलर शीट दिखाएंगे, नॉड ऑफ रेनवियर दिखाएंगे, बाकी आपको एक्सॉन एंडिंग्स दिखानी है। विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज वीडियो। Hope you like the solutions given by me and thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और अब मैंने मेंबर बनने के लिए तो बोलना ही नहीं है, as you wish. Thank you.